Hello friends, welcome back to my channel. So today we are here with the part 2 of chapter 1 of class 12. जाड़े के दिन थे और रात का समय था. नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे. So there is night duty and there are these officials who are drunk with alcohol. मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे. So last time I told you about this honest guy वंशीधर. He had come here only for 6 months. उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था. So because of his good work and all, he had impressed his seniors. Please mark this as important. This can come for complete the following. अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करते थे. They trusted him. नमक का दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी. So now there is this river Jamuna which is a bit far from his office. उस पर नावों का पुल बना हुआ था. So there is a pull here, small bridge. दरोगा जी किवाड़ बंद किए मोटी नींद में सो रहे थे. So now here the daroga is sleeping. Daroga means policeman. अचानक आँख खुली तो नदी की प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोहल्ला सुनाई दिया. Okay, so you know that whenever there's a water body, like it's a seashore or something, we can hear the sound. But now here we can see that suddenly, more than the sound of the river, there is sound of some cars or something that is traveling. उठ बैठे, he got up. इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी पर जा रही है? Why is it that in the night so many cars are going or something? Why they are not going in the day? Looks like something is suspicious. कुछ गोलमाल है. गोलमाल में suspicious. तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया. So now he was having a thought and now maybe he wants to investigate. वर्दी पहनी. So fast he wore his uniform. तमचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे. So now he is near the pool. गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पास जाती दिखी. डांटकर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? So now there are cars which are going near the pool. So he is shouting, whose cars are these? थोड़ी देर तक सन्नाटा था. आदमियों ने कुछ कानफूसी हुई और आगे बोले और कहा, पंडित जी अलोपीनाथ दिन की है. Okay, so now he is asking whose this is. So this is the next character of our story, Pandit Alopidin. So first was Munshi Vanshidhar, who is an honest man, and now this is Pandit Alopidin. So this person is a very wealthy person and he can buy anything. So this person is not that honest, he is a bit corrupt. You will know more about him in the next part of the story. कौन पंडित अलोपीदीन? Who is he? दत्तागंज के. This is a place, दत्तागंज. मुंशी दर चौके. पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे. So he is a very famous landlord. लाखों रुपयों का लेन देन करते थे. So even in that time where people had very less money, this person has money in lakhs का लेन देन करते थे. इधर छोटे से बड़े कौन थे जो उनकी ऋणी ना हो. So everybody from the village, most people from the village had taken loan from him. व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था. He had a big business. बड़े चलते पुर्जे आदमी थे. अंग्रेज अफसर उनके इलाकों में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते. 12 मास सदाव्रत चलता था. Okay, so even when these British officers came for hunting in his house and all, they would become his guests. So he was very rich, he was very famous, he was respected in society. मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? So now this honest Vanshidhar is asking, where are the cars going? उत्तर मिला, कानपुर. So he is saying Kanpur. So whatever names are given, no, these usually don't come as one-line answers, but it is unpredictable, it can come. But you know, this small information in Hindi is very important for complete the following. At our time, the first question of the first section itself was complete the following. Though they give you options, but they are, you know, sometimes very confusing. लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया. When he asked what is this, nobody answered. दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा. Now he is more suspicious. कुछ देर तक उत्तर की बात देखे और जोर से बोले, क्या गूंगे हो गए हो? He waited for some time and said, are you not able to talk? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? What's there in it? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने गाड़ी
को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। नाउ इज टचिंग एंड सिंग। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के डोले थे. So this is the title of our story. So now here you can see that there is a lot of salt which is going to this. So since he is a merchant and he is a landlord, he is illegally taking this salt to Kanpur. That's why they are doing it in the night. पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार. He is there on a chariot. कुछ सोते कुछ जगते, हाफ इन स्लीप. अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाए और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं. So now everybody has panicked that the policeman is not allowing you to go further. पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था. So now he is corrupt. So this is not the good part of misusing Devi Lakshmi. This is how some people do corruption by using Lakshmi ji. वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है. उनका यही कहना यथार्थ ही नहीं था. न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं. So now we say that whatever civilization is there, whatever justice is there, you can just buy it if you have excess money. इन्हें वह जैसी चाहते हैं नचाती है. लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं. He say very confidently that I can buy everything, I will solve it. यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बाड़े लगाकर खाए. फिर लिहाफ आड़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमें ऐसा कौन सा आपदा हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई. इस ब्रह्मांड पर तो आपकी कुदृष्टि रहनी चाहिए. What happened? Why is it that I am such a big person who has been stopped? वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म, इट्स बाय गवर्नमेंट ऑर्डर. पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते. आई डोंट नो द गवर्नमेंट, नीदर द लॉज. हमारे सरकार तो आप ही है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पैराग्राफ एंड ऑल. प्लीज सी दैट यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड इट एंड देन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इफ योर टीचर अलाउस. मोस्ट प्रोबेबली शी मस्ट हैव गिवन यू दिस एज अ क्वेश्चन आंसर. सो सरकार तो आप ही है, सो योर ओनली द गवर्नमेंट. इनडायरेक्टली इज आस्किंग इफ वंशीधर विल टेक रिश्वत. हमारा और आपका तो घर का मामला है, इट्स आवर होम मैटर. हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं. अपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यहाँ हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाए. सो भेंट चढ़ाना मीन्स यह रिश्वत देना. मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा हूँ. का ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा. So since he is an honest person, Vanshidhar is not bothered about how much money is offered to him. He is just an honest person. ईमानदारी की नई उमंग थी. कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते. I can't sell my principles for money. I am a very self-respected man. आप इस समय हिरासत में है. You are under arrest. आपको कायदे के अनुसार चलना होगा. बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है. जमादार बुंदेल सिंह. So he calls this man Bundel Singh, who must be a constable maybe, and tells him to arrest Pandit Alopeedin. स्तंभित रह गए. So here he is हैरान. He is shocked because he is such a rich man that everybody was his puppet. But here you can see that Vanshidhar not only disobeys him but also arrests him. गाड़ियों में हलचल मच गई. पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था कि so this is the first time that somebody has taken him under arrest. Before never somebody even spoke with bold voice to him. बुंदेल सिंह आगे बढ़े. केटू रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके. पंडित जी में धर्म को धर्म का ऐसा निर्धार करते कभी नहीं दिखा था. धर्म को धन का निरादर करते कभी नहीं देखा था. He had never seen anyone giving more importance to religion than money. विचार किया कि यह अभी अखंड लड़का है, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ से झिझकता है. बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे. सर डोंट डू दिस, आई कैन गिव यू हाउ मच मनी यू वांट. इज्जत धूल में मिल जाएगी, बट प्लीज़ डोंट लेट माई इज्जत और माई रिस्पेक्ट बिकम लेस इन सोसाइटी. हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी है. व्हाट विल यू गेट आफ्टर इंसल्टिंग मी? वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते. अलोपीदीन ने जिस सहारे से चट्टान को समझ लिया था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ. सो नाउ हिज मनी इज नॉट हेल्पिंग हिम.
स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी. So now his ego is hurt. किंतु अभी तक धन की संख्यात शक्ति का पर पूरा भरोसा था. Still he had faith that maybe his money can buy him. अपने मुख्तर से बोले, लालाजी 1000 का नोट बाबू साहब को बेट कर दो. So now he is giving him 1000 rupees. वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे नहीं. आप मुझे 1 लाख भी देंगे तो मैं गलत काम नहीं करूँगा. धर्म से बुद्धिहीन ढूंढा और देव दुष्ट त्याग पर बहुत झुंझलाया. अब दोनों शक्तियों में संगम होने लगा था. धन का उछल कर आक्रमण शुरू हुआ. सो नाउ इज गिविंग हिम मोर एंड मोर मनी. 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंची. बट स्टिल भी यू कैन सी दैट वंशीधर इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू धर्म, टू द राइट थिंग. ओके, सो दिस वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ योर आंसर. अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है. आगे आपके अधिकार. नाउ आई कैन नॉट गिव यू मोर. इट्स योर राइट टू डू नाउ व्हाट यू वांट टू डू. वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा. बुंदेल सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा. सो नाउ द कांस्टेबल इज अनहैप्पी बिकॉज इफ ही हैड टेकन रिश्वत देन इवन ही विल गेट समथिंग. पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे. अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए. मैं 25,000 तक निपटाने को तैयार हूँ. सो फाइनल ऑफर इज गिविंग 25,000. दिस कैन कम फॉर संदर्भ सहित स्पष्टीकरण. बट स्टिल वंशीधर इज स्ट्रॉन्ग इन हिज डिसीजन एंड ही सेज नो. 30,000. नाउ 30,000. सो अगेन नो. 40,000. 40 लाख पर भी असंभव है. सेजार ऑनेस्ट वंशीधर. बुंदेल सिंह उस आदमी को हिरासत में ले लेते हैं. Now nobody listens to anything. He is just arrested. धर्म ने धर्म को पैरों के तले कुचल दिया. So now the religion and the right path has stabbed actually the wrong things and the corruption. अलोपीदीन ने एक दुष्ट पुष्ट मनुष्य के हथकड़ियों के लिए अपने तरफ आते देखा. चारों ओर निराश और कटार दृष्टि से देखने लगे. इसके बाद मूर्छित हो गिर पड़े. Okay, so this was all for part 2. From tomorrow I'll try to begin with part 3. So actually we have completed 2 parts. This is remaining, and yeah, so in the next part you will be done, and I'll be most probably posting it by 2 days or tomorrow. Tell me in the comment section by when you want it at the earliest, and please give me more suggestions. And I'm not getting any new subscribers, so please share it with your friends and all that. I'm just stuck on 371. So thank you friends, and best of luck for your exams.